Hello friends, welcome back to our channel. Myself Priyanka Singh from Thakur Publication Private Limited. Today my subject is from UP BCom second semester Financial Accounting. So chapter number 3 Royalty Account. Today my topic is Nazrana. What do you understand by Nazrana? In Nazrana there are two parties involved. One is landlord and one is landlord and other is lessee. He is the tenant. Okay. Landlord has the coal mine, land of the coal mine, and he is the person who approach landlord for acquiring the land to use that land and extract coal mine from that land. Landlord asks some money in term of giving the right to use that coal mine land. The money which landlord asks is the royalty amount, okay, which we have already studied in our previous lectures. In addition to this amount, he asks some more money. The additional amount, the additional payment which he asks from the lessee, that amount is called as a nazrana. The additional payment asked by the lessor to the lessee is called as a nazrana. We can also say lease premium, we can also say goodwill, we can also say advance money, okay, we can also say security money. By giving this additional payment to the landlord, landlord get assurance that he will use that land for the agreed term. Whatever agreed term they have decided, that much time he will work on that land. Say 10 year, 5 year, 15 year, whatever time they have decided between them. So this is the additional payment given by the landlord, given by the lessee to the landlord. That amount is called nazrana. For recording that amount, we prepare nazrana account. We prepare nazrana account for recording that additional payment. Okay. Now this is the meaning of the nazrana. Now what will be the accounting treatment in the book of lessee? There are two party I have told. One is the lessee and one is the lessor. The accounting treatment will differ for both the party. So the accounting treatment in the book of lessee and lessor will be different. What will be the accounting treatment? First we will see in the book of lessee. Lessee will debit the nazrana account with the nazrana amount. Okay, whatever additional amount he has been giving to the landlord, that amount he will debit to his account, nazrana account. Okay, and some portion of that amount which he will write off every year, that amount he will calculate with the help of the formula which I will explain you later in this theory. So every amount he will write off at the end of the year from into the P&L account, and the balance of the nazrana account, whatever appear, lessee will record in the asset side of the balance sheet. Okay. Now what will the treatment in the book of lessor? He will credit that amount, nazrana amount, in the nazrana account. He will credit to the nazrana amount whatever he is getting from the lessee. Okay, and whatever amount he will write off will be transferred to the P&L account every year at the end of the year. Okay, and the balance of nazrana account he will record in the balance sheet at the liability side. Liability side he will record in the balance sheet. Who will record? Lessor will record. Lessee will record on the asset side. So preparation of nazrana account. For the lessee it will be treated as a capital loss, and for the landlord or the lessor it will be treated as capital gain. Nazrana account is debited in the book of lessee account and credited in the book of landlord account. How will calculate the write-off amount? Nazrana amount which has been decided between landlord and lessee, total nazrana amount, divide by total life of the lease.
Okay, now with the help of the example, let understand. Rupees 50,000 has been decided by the landlord and the lessee that he will pay 50,000 in the at time of agreement. That 50,000 for the year, for the 10 years. The lease period is 10 year. So here we'll write 50,000 total amount which lessee will pay to the landlord, divide by how many year of lease has been decided, 10 year. So we'll divide by 10 year. So we'll get 5,000 rupees which he will write off every end of the year. For the 10 year he will write off from the P&L account. Okay, this is the calculation of write off amount. So there are two additional journal entry which we have to pass in the case of Nazrana. Which two additional entries? One is the payment of the Nazrana and other is the write off entry at the end of the year. So what will be the payment of the Nazrana? What will the entry of the payment of the Nazrana? Nazrana account debit to bank account. Means whatever amount has been decided, like in the previous example 50,000 was decided between both of them. So 50,000 rupees account, Nazrana account debit with 50,000 to bank 50,000. Okay, one is the payment account, other is of writing off. How much amount every year lessee will write off, that is of 5,000, which we have calculated with the help of formula. So this is the two additional entry of payment and write off which we have to pass if we have been told that you have to record Nazrana account in the book of Nazrana account. So this is the concept of Nazrana, and we'll start with the numerical so that it will become more easy to understand if I'll solve with the help of the example. See, example, in this example what he have said, on 1st January 2018 a large plot of land has been leased by Mr. M Brick Company for 20 years from P. So in this case P is the landlord, he is having the land, okay, and who has acquiring the right? M Brick Company. M Brick Company is the lessee who is approaching to have his land for the use for the mining purpose. The duration of the lease period is of 20 years. This is the lease period. An amount of 10,000 is paid to P as Nazrana. So landlord is receiving rupees 10,000 additional amount as a Nazrana. So this is the amount, Nazrana amount, which has been decided between P and M Brick. Okay, this is the Nazrana amount which he is going to give to the P for the period of lease. Means on 1st January 2018 he will pay additional 10,000 rupees to Mr. P. And other thing is that 20 paise per 100 cube feet of land or earth taken out to be paid by lessee as the amount of annual royalty. So annual royalty is decided 20 paise per cube, means 20 paise per 100 cube, ठीक है, 100 cube feet. This is the per cube per 100 cube annual amount has been decided, 20%. Royalty is paid on 31st December of each accounting year. Minimum rent amount is 2,000 per year. Minimum rent is 2,000 per year. The amount of short working, if any, is to be recouped out of the future excess royalty. Means there is no limitation for the recoupment. They have told that if whenever you get the excess amount, you can
recoup that amount. Means no time limit has been given. Future excess royalty means whenever you got the excess amount in the form of royalty, you can recoup. You have the right to recoup. Okay, and there in 3 years has been given, 2018, 19 or and 20. In 2018, 8 lakh cube feet has been extracted. In 2019, 9 lakh cube feet has been extracted, and in 2020, 12 lakh cube feet has been extracted by MBRIC. And what we have been told, you are required to prepare necessary ledger account in the book of MBRIC company for recording these transactions. So with the help of this data, we will first prepare analytical table. So this is the analytical table. How we are going to prepare? Let's see this. See, in the first year, there has been 3 years, 2018, 19, 20. So we will write 18, 19, 20. In the first year, we got output of 8 lakh cube feet. Okay. In the third year, 8 lakh, 9 lakh and 12 lakh. So we will write over here 8 lakh, 9 lakh, 12 lakh. How many, what is the cube feet given in the question? 20 paise per 100 cube feet. 20 paise per 100 cube feet. Now we will calculate over here. 20 paise per 100 cube feet means, here we will calculate this. We will calculate this. 20 पैसे 100 क्यूब फीट का है, तो आपका 8 लाख क्यूब फीट कितना होगा? When you will cross multiply this, you will get 1600. इसको इससे मल्टीप्लाई करिए एंड डिवाइड करिए बाद में इसको. 8 2 जा 16. ठीक है. दिस वे यू विल गेट 1600. लाइक सेम इसी तरीके से आप नेक्स्ट ईयर भी करेंगे. 20 पैसे इंटू 100, 20 पैसे इंटू 9 लाख डिवाइड बाय 100. 20 पैसे इंटू 9 लाख डिवाइड बाय 100 जब करेंगे तो यू विल गेट 1800. 12 लाख इंटू 20 पैसे डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 2400 आप पाएंगे. रॉयल्टी अमाउंट आपको मिल गई. देन मिनिमम रेंट हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2000 रुपीज़ पर ईयर. सो विल राइट 2000 इन ईच ईयर. ठीक. इसके बाद शॉर्ट वर्किंग. पहला सिचुएशन अगर आप देख सकते हैं तो इसमें मेंशन हो रहा है पहले में रॉयल्टी 1600 हमने निकाली है और मिनिमम रेंट डिसाइड किया है 2000. सो रॉयल्टी इज़ लेस अमाउंट देन मिनिमम रेंट. रॉयल्टी इज़ लेस, तो शॉर्ट वर्किंग कितनी की हुई? 400 की. ओके. ये रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट वाला सिचुएशन है. फर्स्ट ईयर में कोई सरप्लस नहीं है, शॉर्ट वर्किंग है 400 की, रिक्यूब भी नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको ट्रांसफ़र कर दे रहे, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. और लैंडलॉर्ड को हम कितना पे करेंगे? जो मैक्सिमम अमाउंट है रॉयल्टी और मिनिमम रेंट के बीच में, जो कि 2000 रुपीज़ है. सो हम लोग लैंडलॉर्ड को 2000 रुपीज़ पे करेंगे. सेकेंड ईयर में रॉयल्टी अमाउंट 1800 है और मिनिमम रेंट डिसाइडेड है 2000. सो अगेन द सिचुएशन इज़ ऑफ रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट. तो इसमें हमारा शॉर्ट वर्किंग कितना आ रहा है? 200 रुपीज़. अगेन द शॉर्ट वर्किंग, देर इज़ नो सरप्लस, देर इज़ नो ऑप्शन ऑफ रिक्यूपमेंट. इसको भी हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो 400 प्लस 200 दैट इज़ 600 हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया है.
और हम लैंडलॉर्ड को कितना पे करेंगे, लैंडलॉर्ड को हम मैक्सिमम ऑफ रॉयल्टी अमाउंट एंड मिनिमम रेंट करेंगे जो कि 2000 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ हमने 2000 कर दिया। नेक्स्ट ईयर 2020 में हमारा जो रॉयल्टी अमाउंट है वो 2400 है और जो मिनिमम रेंट है वो 2000 है। तो यहाँ हमारा रॉयल्टी अमाउंट ग्रेटर है। ओके, यहाँ हमारा रॉयल्टी अमाउंट ग्रेटर है। तो एक्सेस कितना हुआ, एक्सेस 400 रुपीज़ हुई। अब हमारे पास सरप्लस 400 का है और हमारे पास शॉर्ट वर्किंग 600 का है। तो हम क्या करेंगे, इस शॉर्ट वर्किंग को रिक्यूप करने का हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। तो विल रिक्यूप दिस अमाउंट इन 2020। तो हमने 400 का रिक्यूप कर लिया, ठीक है। अब ये 200 और बचा जो कि शॉर्ट वर्किंग थी, बट हमारे पास अब कोई एक्सेस अमाउंट नहीं बचा क्योंकि ईयर हम सिर्फ 3 साल का बना रहे हैं। तो हमने जो 200 रुपीज़ बचा उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे पीएनएल में, शॉर्ट वर्किंग एट द एंड पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देंगे बिकॉज उसको हम रिक्यूब नहीं कर पाए। अब लैंडलॉर्ड को हम कितना देंगे, हमारे पास 2400 रॉयल्टी आई थी बट हमने 400 रुपीज़ रिक्यूपमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया, तो रिमेनिंग हमारे पास सिर्फ 2000 रुपीज़ ही बचा। तो सेम अमाउंट हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दिए हैं इस तरीके से। अब इस केस में क्योंकि नजराना दिया गया है एडिशनल अमाउंट, ये रॉयल्टी अमाउंट तो उसने दिया ही है, बट जब 2018 में दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ तो ये डिसाइड हुआ कि 10,000 का नजराना अमाउंट दिया जाएगा मिस्टर पी को। तो उसके लिए हमें नजराना अमाउंट क्वेश्चन में दिया था 10,000। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में हमें मेंशन किया गया है कि एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 इज़ पेड टू पी एज नजराना। सो ये नजराना अमाउंट है। ओके, और ईयर कितना मेंशन है, 20 साल का ये लीज एग्रीमेंट है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए राइट ऑफ का अमाउंट निकालेंगे कि हर साल हम कितना राइट ऑफ करेंगे। टोटल अमाउंट नजराना कितना है 10,000, नंबर ऑफ ईयर ऑफ लीज कितना है 20 ईयर। जब हम 10,000 को 20 ईयर से डिवाइड करेंगे विल गेट 500 रुपीज़। ओके, तो हमें मिलेगा 500 रुपीज़। तो नजराना अमाउंट आया 500 रुपीज़। अब हमें क्या क्वेश्चन में बोला गया था, हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इस डेटा के हेल्प से नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाना है। क्योंकि नजराना का कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले हम नजराना अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले नजराना अकाउंट बनाएंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि जो सिचुएशन हमने रॉयल्टी की या लैंडलॉर्ड की या शॉर्ट वर्किंग की जो हमने पहले लेसी की बुक में पढ़ा था वो सेम सिचुएशन सेम एंट्रीज रहेगी, सिर्फ और सिर्फ एंट्री जो डिफरेंट रहेगी वो नजराना की रहेगी। नजराना की 2 एंट्री एक्स्ट्रा आएगी जो कि एक नजराना पेमेंट की होती है और एक राइट ऑफ की होती है, ठीक है। तो अब पहले हम नजराना अकाउंट देखते हैं कैसे बनता है। सो फर्स्ट अकाउंट विल प्रिपेयर ऑफ नजराना अकाउंट। डेबिट, one side will write debit column, debit, other side credit, date particular rupee, date particular rupee. So जो पहली नजराना की एंट्री होती है वो पेमेंट की होती है नजराना टू बैंक। नजराना टू बैंक तो हमने नजराना 2018 में फर्स्ट ईयर जो डिसाइड किया था वो 10,000 रुपीज़ का किया था। सो नजराना अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000। यहाँ हमने नजराना को डेबिट किया है तो हम नजराना अकाउंट में बैंक को डेबिट करेंगे टू कैश बैंक 10,000। ओके, दूसरी एंट्री कब हम पास करेंगे नजराना की, राइट ऑफ में। राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी, पीएनएल टू नजराना। तो पीएनएल को क्रेडिट करते हैं तो इस वजह से दूसरी एंट्री होगी पीएनएल टू नजराना। हमने कितने अमाउंट से नजराना को क्रेडिट किया है 500। वो क्यों किया है, बिकॉज हमने राइट ऑफ जब निकाला था, राइट ऑफ अमाउंट निकाला था तो 20 साल का जो 10,000 का राइट ऑफ अमाउंट निकलेगा वो एज़ पर फॉर्मूला 500 रुपीज़ निकलेगा। तो नजराना को क्रेडिट किया है तो अब नजराना के अकाउंट में हम जाते हैं और हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में 500 रुपीज़ लिखते हैं। तो 10,000 में से 500 गया तो बैलेंस कितना बचा 9,500। इस 9,500 को हम नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करते हैं
क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो हम कुछ नजराना देंगे नहीं। डिसाइड ये होता है कि इनिशियल स्टार्टिंग एग्रीमेंट टाइम, जब हम एग्रीमेंट डील करते हैं उसी समय हम जो भी सिक्योरिटी मनी देना होता है वो दे देते हैं, तो वो फर्स्ट ईयर में ही होता है। तो अब हमने इसको ब्रॉड डाउन 9500 किया, मगर राइट ऑफ हम एवरी ईयर करेंगे वही सेम अमाउंट से। तो अगेन 2019 में हमने राइट ऑफ किया 500 रुपीज़ से, तो बैलेंस कितना बचा 9500 माइनस 500, तो बैलेंस सीडी जो हुआ वो 9000 रुपीज़ हुआ। 2019 में बैलेंस अमाउंट हमारे पास 9000 है, जो कि हम ब्रॉड डाउन करते हैं 2020 में 9000, और फिर राइट ऑफ की एंट्री पास करेंगे बाय P&L अकाउंट 500 रुपीज़ से। तो 9000 में से 500 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 8500। तो हमारा 2020 ईयर टैली होता है 9000 रुपीज़ से, इस तरीके से। तो ये नजराना का अकाउंट है जो कि सिर्फ 2 एंट्री इसमें पास करनी होती है, एक पेमेंट की फर्स्ट ईयर जो होता है, और फिर हर ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में वो राइट ऑफ अमाउंट ट्रांसफ़र होता जाता है, और उसी अमाउंट को बैलेंस, उसका जो बैलेंस होता है इनिशियल अमाउंट से, वो हम कैरी ब्रॉड डाउन करते रहते हैं। इस तरीके से आपका नजराना अकाउंट बनता है। देन दूसरा अकाउंट है आपका शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट सेम तरीके से बनाते हैं जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, एलएलसी के केस में बनेगा। अब इसके लिए हम पहले टेबल देखते हैं कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में टेबल में कौन से ईयर हमारा शॉर्ट वर्किंग जनरेट हुआ था। जैसे कि शॉर्ट वर्किंग 2018 में हुआ है, 19 में हुआ है, फिर 20 में सरप्लस हुआ है 400 का, जिसको कि हमने रिक्यूब कर दिया लास्ट ईयर, और बैलेंस 200 बचा है जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि ये एक्सेस ये शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट हम रिक्यूब नहीं कर पाए हैं। तो अब पहली साल की एंट्री में शॉर्ट वर्किंग पहला पेड की एंट्री होती है जो कि नजराना पेमेंट किया, दूसरा ड्यू की एंट्री होती है, क्योंकि ये पहली ईयर की जो सिचुएशन है वो है इन द बुक ऑफ लेसी रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट। तो वेन एवर द रॉयल्टी इज़ लेस देन मिनिमम रेंट, तो हमारी पहली एंट्री होती है रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये ड्यू की एंट्री जो हम पहले पास करते हैं, जिसमें कि हमारी शॉर्ट वर्किंग रॉयल्टी हमने डेबिट किया 1600 से, शॉर्ट वर्किंग हमने डेबिट किया 400 से, और लैंडलॉर्ड को कितना पे करना है मिला के 1600 प्लस 400 डैट इज़ 2000 रुपीज़, जो कि मिनिमम रेंट है। तो अब इसकी हम जब लेजर पास करेंगे तो डेबिट है, तो हम लैंडलॉर्ड को डेबिट करेंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में। नेक्स्ट अकाउंट इज़ ऑफ शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो फर्स्ट ईयर में हम एंट्री देखते हैं शॉर्ट वर्किंग कब जनरेट हुई है। फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग 400 की जनरेट हुई है। तो हम जो फर्स्ट ईयर 2018 की जो एंट्री पास करते हैं, पहले नजराना फिर ड्यू के केस में हम एक एंट्री शॉर्ट वर्किंग की भी इंक्लूड करेंगे, जैसे कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी 1600 का है, शॉर्ट वर्किंग 400 का है, और लैंडलॉर्ड को जो हम पेमेंट करेंगे टोटल 16 प्लस 4 दैट इज़ ऑफ 2000 रुपीज़। तो ये शॉर्ट वर्किंग का हम अकाउंट जब डेबिट करेंगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट से करेंगे 400 रुपीज़ से, लैंडलॉर्ड अकाउंट से हम करेंगे टू पी अकाउंट 400। इसी को हम ब्रॉड डाउन कैरी डाउन करेंगे 400 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर हम इसको ब्रॉड डाउन कर लेंगे। फिर अगेन हम 2019 में शॉर्ट वर्किंग वापस जनरेट हुई है ये 200 रुपीज़ की। तो नेक्स्ट ईयर जो हम एंट्री पास वापस कर रहे हैं रॉयल्टी अकाउंट डेबिट 1800, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 200 एंड लैंडलॉर्ड अकाउंट दैट इज़ ऑफ 200, 18 प्लस 2 दैट इज़ 2000 रुपीज़। तो हम जब यहाँ शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट बना रहे हैं टू पी अकाउंट 200 रुपीज़, 400 प्लस 200 दैट इज़ 600, इसको हम कैरी डाउन करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर 2020 में इसको ब्रॉड डाउन कर रहे हैं। अब इस केस में हम क्या करेंगे, अगर आप ये देखेंगे रॉयल्टी शेड्यूल, तो हम इसमें 200 अब सरप्लस आ गया था 400, तो इस 400 को हम रिक्यूब करेंगे। तो रिक्यूब करेंगे तो लास्ट ईयर की एंट्री जो होती है वो ये होती है, पहले तो हम ड्यू करते हैं क्योंकि यहाँ एक्सेस है तो एंट्री चेंज हो जाती है। एक्सेस अमाउंट को हम पहले ड्यू करें फिर पेमेंट कर रहे हैं, जब पेमेंट कर रहे हैं तो हम सरप्लस अमाउंट को रिक्यूब कर रहे हैं। कितना रिक्यूब कर रहे हैं 400 रुपीज़, तो ये आपकी क्रेडिट में है।
तो हम शॉर्ट वर्किंग का जब अकाउंट बनाएंगे, शॉर्ट वर्किंग का लास्ट ईयर में क्रेडिट साइड में पी अकाउंट लिख के 400 रुपीज़ करेंगे, तो 400 प्लस 200 जो बैलेंस आया, इस तरीके से 600 ये टैली हो गया। ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो गया 3 साल का। नेक्स्ट अकाउंट होगा पी अकाउंट। पी अकाउंट मीन्स लैंडलॉर्ड अकाउंट। सेम हम उसका लेजर का फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लेंगे। वन साइड विल बी द डेबिट कॉलम, अदर साइड विल बी द क्रेडिट कॉलम, डेट पर्टिकुलर रुपी, डेट पर्टिकुलर रुपी। नाउ इन द फर्स्ट ईयर की हम एंट्री चेक कर लेते हैं। लैंडलॉर्ड कहाँ है? नजराना पेड, इसमें लैंडलॉर्ड नहीं है। ड्यू के वक्त हमने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया है 2000 रुपीज़ से, तो ये 2000 से जो क्रेडिट किया है, तो हम अपने लैंडलॉर्ड की एंट्री में अकाउंट में चलेंगे और वहाँ क्रेडिट करेंगे रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग को। रॉयल्टी को और शॉर्ट वर्किंग को हमने यहाँ क्रेडिट किया, रॉयल्टी को शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट किया, जो कि 1600 एंड 400 है। इनको प्लस करेंगे तो 2000 हो जाएगा। उसके बाद हम पेमेंट करेंगे। पेमेंट की एंट्री आएगी लैंडलॉर्ड टू बैंक, तो लैंडलॉर्ड को डेबिट किया है, तो डेबिट साइड में हम लैंडलॉर्ड के अकाउंट में बैंक लिखेंगे, कैश बैंक। डेबिट साइड में लैंडलॉर्ड के अकाउंट में, डेबिट साइड में हम कैश बैंक 2000 रुपीज़ से किया हमने। नेक्स्ट अगेन नेक्स्ट ईयर हमें शॉर्ट वर्किंग हुई थी, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर हमारी शॉर्ट वर्किंग ड्यू की एंट्री में शॉर्ट वर्किंग हुई थी, तो ये लैंडलॉर्ड को हमने क्रेडिट किया है 2000 रुपीज़ से। तो लैंडलॉर्ड की जब हम अकाउंट मेंटेन करेंगे तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे रॉयल्टी 1800, शॉर्ट वर्किंग 200। रॉयल्टी 1800 क्रेडिट साइड में, शॉर्ट वर्किंग 200, जो कि 2000 रुपीज़ हो गया। तो उसका पेमेंट की एंट्री होगी सेकेंड ईयर, ड्यू कर दिया तो अब पेमेंट भी होगा। पेमेंट की एंट्री ये है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 2000 टू बैंक अकाउंट 2000। लैंडलॉर्ड को डेबिट किया है तो डेबिट साइड में लैंडलॉर्ड अकाउंट में, लैंडलॉर्ड लेजर अकाउंट में हम बैंक कैश बैंक 2000 करेंगे। डेबिट साइड में कैश बैंक 2000 किया हमने, 2000 ये टैली हो गया इस तरीके से। देन दी लास्ट ईयर 2020 में क्या होता है, 2020 में हमारा सरप्लस जनरेट हो गया। रॉयल्टी 2400 है और मिनिमम रेंट 2000 था, तो सरप्लस ऑफ 400 हो गया। अब इसकी एंट्री दूसरी होगी, बिकॉज क्योंकि रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट। इसकी एंट्री क्या होगी? ये सिचुएशन वो है जहाँ रॉयल्टी इज़ मोर देन मिनिमम रेंट, तो उसकी जर्नल एंट्री होगी रॉयल्टी टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ हमने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट किया है, तो हम उसके लेजर में चलेंगे, क्रेडिट साइड में रॉयल्टी लिखेंगे। लैंडलॉर्ड के लेजर में गए, क्रेडिट साइड में रॉयल्टी लिखा 2400 से, बिकॉज इस ईयर हमने 2400 की रॉयल्टी जनरेट की थी। नेक्स्ट एंट्री है लैंडलॉर्ड टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक। तो नेक्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड को हम डेबिट कर रहे हैं, तो डेबिट साइड में हम पास करेंगे शॉर्ट वर्किंग 400 से और बैंक 2000 से। जैसे कि हम लेजर में चलते हैं, शॉर्ट वर्किंग 400 से और कैश बैंक 2000 से, ये हमारा टैली होता है 2400 रुपीज़ 2020 में। इस तरीके से लैंडलॉर्ड का अकाउंट बना दिया हमने। तो अगर हमने यहाँ आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आता है नजराना अकाउंट का ही डिफरेंस है। इस तरीके के न्यूमेरिकल में जब नजराना अकाउंट बनाने बोलेंगे तो बस ये डिफरेंस है कि आपको इनिशियल ईयर में एक एंट्री पास करनी होगी जो कि पेमेंट की होगी, फिर हर साल आपको राइट ऑफ की एंट्री पास करनी होगी। बाकी रॉयल्टी अकाउंट हो गया या शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हो गया या लैंडलॉर्ड अकाउंट हो गया, उसका जो बेस होगा वो हमारे प्रीवियस लेक्चर पे ही रहेगा। मतलब कि अगर रॉयल्टी मोर देन मिनिमम रेंट है तो जो उसकी जर्नल एंट्री होती है वो सेम रहेगी। रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट रहेगा तो जो उसकी एंट्री हमने पहले लेसी की बुक में पढ़ा था वो सेम रहेगा। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नजराना अकाउंट। Thank you for watching our lecture. Stay tuned with us for the next lecture. The topic will be on strike.